Good afternoon, ma'am. Can we have the cameras on? Ma'am, my front camera is not able to catch any picture. Why is it so? Any problems? Ma'am, I would have opened my camera, but I don't have much battery in my phone and the light is also not coming. Same here. Chalo, let it be. Let it be. No issues. So we were on. I think civics we were doing class. Yes, ma'am. Okay. इसको तो हम minimize करते हैं. Which topic we were covering? Please let me know so that I can. Hanji, can you hear me, class? Ma'am, we did what is our system of elections? ये Can you all see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That book is there, no? Yes, ma'am. Fine. Actually, on my screen, it is showing your screen sharing is paused. Now, how to? Acha. Kanika, can you tell again where we were? Can you see the screen? No, ma'am. Not now. No, ma'am. Give me a moment. No, ma'am. Just a minute. Now you can see, I believe. Now Yes, you ma'am. can see. Very good. I was saying, Yes, ma'am. Yes, ma'am. I was asking which topic we were on. Please let me know. Ma'am, Ma'am, have you marked me present? Manshu. I have not taken. I have not taken attendance. Okay. Let me just check. Just 9 participants are there. We have Raghav, Nikhil, Manas, Kanika, Himanshu, Ayush, Akshat, and Abhinav, right? Including me. So I'll just mark you all present.
Okay, this is 9th, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And today is 11th of December. उससे पहले हमारा क्लास नहीं हुआ क्या कोई? No, ma'am. We had a class on Monday, तो Monday हमने class. बहुत दिनों से नहीं हुआ. चलो, I hope you people missed me. Yes, ma'am. A lot. Seriously, Akshat to never attends the classes and still saying we missed you a lot. Okay. चलो. मैम वो तो वेडिंग की वजह से मैं नहीं अटेंड कर पा रहा था. किसकी वेडिंग? मेरी मम्मी की कजन बहन. ओके, तो मासी बोल दो. वेरी सिंपल. हाँ मासी. हाँ, हाँ मौसी भी. और एक और थी शादी. अच्छा. हाँ अच्छा, जी. अच्छा, चलो कोई नहीं. We have Abhinav Pandey. How are you, Abhinav? I'm fine. Okay. Did you miss me? Yes, ma'am. Good. Actually, I don't know why, but class 9th, all the 3 sections, I love taking these 3 classes because you people are so affectionate and very lovable you people are. All the 3 sections. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, Himanshu. Kanika. Thank you so much, ma'am. Okay. Then we have Manas, Nikhil and Raghav. Fine. Those who will come late, I will be adding them. Right? Okay. चलिए. Ma'am, did you miss us? बेटा बहुत ज्यादा. Seriously, I am not joking. Seriously, I missed you people. Especially class 9, तो I don't want to leave at all. I don't know why. एक वो थोड़ा सा बड़ा प्यारा वाला कनेक्शन है हम लोगों का सबका जो मुझे लगता है. Class 8 से. तो for me, you people are all very, darlings. Class 8th और class 9th. बहुत ज्यादा. Man, choose anyone. One? Why one? Why one? Ma'am, one. See, I'm not including class 10th here. I have said class 8th and class 9th particularly. Oh, then 10th class also be there. See, when you will come to class 10th, I'll see how your responses are. Right? Okay, fine. We were on, Kanika, which particular topic we were on? Ma'am, we did. What is our system of elections? Acha, that we have done. Or we have started. Yes, ma'am, in the merge class. Acha, okay. But like when we had individual class, where exactly we stopped? Because I think for almost 10 days, there was no class, right? Especially my classes, because we were going for invigilation, right? Ma'am, we stopped before this only. We started this like new topic. Okay, fine. Then it is okay. So in that merge class, arrangement class that we had, we like what exactly we discussed. We discussed about what is our system of elections, how the constituencies are divided, then Lok Sabha, Rajya Sabha, all these things. Lok Sabha, then MLA, MP wala part, everything. I think we have completed. Yes, ma'am. हाँ, ठीक है तो फिर सही है. क्या रिकॉर्डिंग हो रही है? कोई मुझे बता पाएगा? Yes, ma'am. हो रही है ना? हाँ. Ma'am, recording हो रही है. ठीक है, फाइन फाइन. ओके, तो
before we start again, let me ask any one of you, any out all those who are there in the class, anybody who can tell me what is our system of elections? How do the elections take place in our country? What is the procedure that is followed? Ma'am, the people choose their candidate. Yes, people choose their candidates, but then what is the procedure for choosing the candidates? How do they choose the candidates? Akshat? By election. Election by voting, we can say by voting, right? है ना, हम कह सकते हैं ना, by voting we can say. Yes, ma'am. है ना, और Yes, voting is part of elections. Voting is part of elections. Yes, ma'am. ठीक है, अब ये बताओ कि everybody in the country has access to votes, or there is a particular criteria that a specific people possessing specific qualities can vote, or it is free for all, everyone is eligible to vote? What is the criteria of voters in our country? Ma'am, people below 18 years of age can't vote. Very good. All those people who are below 18 years of age, they don't have access to votes, right? Very good, very good. What else? Who can vote? Ma'am, anyone who is above 18 years without any discrimination of caste, color and religion. ठीक है. A person who is insane mind, Universal or franchisee? a person who is insane, who is not in a normal condition, does the constitution allow such people to vote? Yes, ma'am. But above 18. Yes, Akshat. Yes, ma'am. अगर कोई मेंटल है या कोई इंसेन है, उसे पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, क्या उसको भी राइट होगा वोट डालने का? आप मुझे बताओ, क्या उसको अधिकार होगा वोट डालने का? Please repeat what you have said. My question is a person who does not have a stable mind, कोई इंसान जो पागल है या इंसेन है, ठीक है, क्या उसको भी वो राइट है वोट करने का कि नहीं है? Excuse me, ma'am. Hello, मैम. हाँ. अभी थोड़ा सा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हुई आपका. आवाज कट गई. अच्छा अभिनव, आप बताओ बेटा, अगर कोई इंसान इंसेन है, मतलब पागल है, क्या उसको अधिकार होता है वोट करने का? अभिनव? कनिका, अभिनव, हिमांशु, अक्षत? Ma'am, I don't think so because he'll not be able to make a proper decision. Exactly, because such people, they don't Yes, ma'am. such people don't they are not in a capacity to take decision. That is why these kind of people, they are devoid of this right to vote, right? Fine. See, in our country, when it comes to elections, we follow universal adult franchise. All those people who are 18 plus, 18 or 18 plus, they all have the right to vote. But people, those who are insane, they are not allowed to vote because they themselves don't know what is good and what is not. So they are not in a capacity to take decisions. That is why such people are, they are devoid of the voting part, right? Rest, all the people of the country, they are part of the system of the elections. But only those who are 18 plus, 18 or 18 plus, they have the right to vote. They are the ones who actually make choices. They only elect the representatives for governing themselves, right? ठीक है? Yes, ma'am. When it comes to But the people
हाँ हाँ, बोलो बोलो। Can only vote हम्म। above the Lok Sabha and मतलब when the people can't vote MLAs. नहीं नहीं, एमएलए के लिए करते हैं भाई, कैसी बात कर दी आपने। स्टेट असेंबली के जब इलेक्शंस होते हैं, जब राज्यों में इलेक्शंस होते हैं, जब स्टेट्स में इलेक्शंस हो, अभी बिहार में जब इलेक्शंस हुए तो क्या लोगों ने वोट नहीं करा था भाई, पर उसी राज्य के लोगों ने करा था। जब स्टेट के जब आपके इलेक्शंस होते हैं, जैसे पंजाब में इलेक्शन हुए, हरियाणा में इलेक्शन हुए, आपका जो है हिमाचल में इलेक्शंस हुए, उत्तराखंड में हुए या यूपी में हुए, या जितने भी 29 या 28 स्टेट्स जो हैं उनमें 28 स्टेट्स में जहां पे भी हमारे इलेक्शंस हुए, उन सब स्टेट्स में जो उस पर्टिकुलर स्टेट का रहने वाला है, केवल वही इंसान वोट कर सकता है। हम चाहे हरियाणा से लोगों को ले जाएं उठा के कि चलो भाई बिहार में जाके वोट करो, तो क्या ये पॉसिबल है? No, ma'am. नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। केवल वो लोग जो उस स्टेट से मतलब जब हमें पता है जब इलेक्शंस होते हैं तो जिन लोगों को वोट करना होता है उसकी एक प्रॉपर रोल बनती है। जैसे आप लोग नाइन्थ के डिफरेंट सेक्शन में कौन कौन से बच्चे एनरोल्ड हैं, उन सब के नाम सेक्शन वाइज अलग अलग सेग्रीगेट किए गए हैं। हो आप सब लोग क्लास 9th में, बट ओनली द सेक्शंस आर सेग्रीगेटेड, ठीक है। ठीक ऐसे ही जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस का भी एक रोल कॉल होता है, उसका भी एक रजिस्टर मेंटेन होता है, जिसमें सब हर उस इंसान का नाम होता है जो कि वोटर के लिए वोटिंग के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। उसको हम इलेक्टोरल रोल बोलते हैं या वोटर्स लिस्ट बोलते हैं। उस वोटर्स लिस्ट में हर उस इंसान का नाम होता है जो कि उस पर्टिकुलर एरिया, जैसे अगर हम बात करते हैं से फॉर एग्जांपल अक्षत रहते हैं सन सिटी में, ठीक है। सन सिटी आप में तो रहते हो आप अक्षत? Yes, ma'am. हाँ, सन सिटी का जो भी एरिया कहलाता है, जब इलेक्शंस होते हैं तो इनके एरिया को भी एक नाम दिया जाता है, एक नंबर दिया जाता है। तो उस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं जो 18 इयर्स या उसके अबव हैं, उन सबका नाम उस एरिया के वोटर्स लिस्ट में होगा, ताकि कोई भी गलत इंसान आके उस पर्टिकुलर इंसान के नाम पे आके वोट ना डाले, ठीक है। ये इसलिए करा जाता है ताकि गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड्स रहें कि भाई कौन जो है किस एरिया से कब किस एरिया में कौन रह रहा है, और वो उसी एरिया में वोट जाके अपना दे। ऐसा नहीं है कि भाई इस एक एरिया में आप है, जिस एरिया में आपका वोट बना हुआ है, आप उस एरिया में ना जाके दूसरे एरिया में दे रहे हैं। वो कंडीशंस अलग होती हैं जब आप कहीं और जाके वोट दे सकते हैं। जैसे ऑल दोज पीपल हु आर इन आर्मी और जो ट्रांसफरेबल जॉब्स में होते हैं, जो अपने एरिया जो अपने स्टेट्स में नहीं रहते हैं, जो कि ट्रांसफर्स पे बाहर ही रहते हैं, उन लोगों को अधिकार होता है कि उनका जो वोट है वो किसी को अपना जो है वो बना के, क्या बोलते हैं उसका एक नाम होता है प्रॉपर, उसके थ्रू जो है वो अपना वोट जो है कास्ट करते हैं, ठीक है। इधर थ्रू पोस्ट वो दे देते हैं कि भाई हमारा वोट इस पर्टिकुलर इंसान के लिए जाएगा, या कौन हमारे बिहाफ पे जो है वोट देगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है, बट आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप रहते आप बिहार में हो, आप बिहार के, और पंजाब के इलेक्शंस में आप जाके जो है आप वोट अपने डाल रहे हो पंजाब के स्टेट इलेक्शंस में, ठीक है। स्टेट इलेक्शंस में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। हाँ, जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं उसमें भी यही होता है कि भाई आपका वोट जो होता है आपके एरिया का ही बना होता है। पर अगर आप ट्रांसफरेबल जॉब में हो, आप उस समय जब इलेक्शंस हो रहे हैं उस जगह पे नहीं हो, अपने जगह पे नहीं हो, तो आप जिस जगह पे हो वहां से भी आप अपना वोट कास्ट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट इस बात की परमिशन आपको देती है, ठीक है। राइट क्लास? Yes, ma'am. चलिए, इतना पोर्शन तो आप लोगों को क्लियर होगा ना कि एमपी कौन होते हैं, एमएलए कौन होते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, Yes. इसको हमें रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है ना। चलिए, अब आप आ जाइए। तो ये रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, आपको हमने पढ़ी हैं क्लास? रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमने पढ़ी हैं। Yes. बताओ भाई, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज पढ़ लिया था, नहीं पढ़ा था हमने कनिका? No, ma'am. नहीं पढ़ा था ना? अच्छा ठीक है, No, ma'am. चलिए ठीक है, हम बता देते हैं। आपने जब हम एक ये मैप हम आपको दिखाते हैं पहले तो। हम्म,
ये मैप दिख रहा है आप लोगों को सबको? Yes, ma'am. बेटा इस मैप में देखो जब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे लिखा हुआ है उसमें आपका टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी हुई है 543, ठीक है? तो हमारे Yes, कंट्री ma'am. जब लोकसभा इलेक्शंस होते हैं तो हमारे पूरी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। आई थिंक फ्रॉम द मैप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है? इसमें जो व्हाइट पोर्शन है, ब्लैंक जो है, दैट बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी, मतलब हमारे कंट्री में लोकसभा के जनरल कैटेगरी के 412 जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। कितने हैं? 412, ठीक है? जिसमें से जो रेड पोर्शन है दैट इज रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स 84%, 84 टोटल सीट्स, ठीक है? और रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ग्रीन पोर्शन दैट इज 47। तो कह रहा है इन सबको जनरल रिजर्व कैटेगरीज जो आपकी SC ST की मिला के जो है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारे कंट्री में लोकसभा की बनती हैं, ठीक है? दिस मच इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब वो ये कह रहा है कि ये रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का क्या कॉन्सेप्ट है? रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमारे कंट्री में क्यों आई, आपको पता है ये बात? Anybody in the class? No, ma'am. ओके बेटा ऐसा था ना जब फ्रीडम स्ट्रगल थी, हालांकि आप लोग ये क्लास 10th में पढ़ोगे, जब आप क्लास 10th में आओगे, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉन्सेप्ट पहले हमारे कंट्री में नहीं था। पर जब हम लोग इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहे थे उस दौरान जितने भी हमारे जो INC के मेंबर्स थे उसमें जितने भी लोग थे देवर ईदर फ्रॉम हाई कास्ट, वो हाई कास्ट ब्राह्मण्स थे या फिर जो है उन 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 क्लासेस के थे जो कि लोअर क्लास को बिलोंग नहीं करते थे, ठीक है? तो जब इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था तो उस टाइम पे जो भी हमारे लीडर्स रहे थे, नेशनलिस्ट लीडर्स, जिनमें डॉक्टर BR अम्बेडकर वाज आल्सो वन ऑफ देम, तो उन्होंने ये पाया कि भाई इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हम क्यों फॉलो कर रहे हैं। जैसे गांधी जी वाज ऑलवेज अगेंस्ट सच काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कि भाई हम दलितों को या जो अनटचेबल्स हैं उनको हम पार्ट नहीं बना रहे हैं ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। हमने आपको, आई डोंट नो, अभी तो शायद हमारी ऐसे कोई क्लास हुई नहीं है, हिस्ट्री हमने आपको पढ़ाई नहीं थी 8th में। जब गांधी जी इंडिया आए थे, जब ब्रिटिश रूल का बहुत ज्यादा जब एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता जा रहा था, एंड फ्रॉम साउथ अफ्रीका व्हेन गांधी जी फेल्ट द कंट्री नीड्स हिम, तो जब वापस वो इंडिया आए तो उन्होंने ऑलमोस्ट 1 year तक he moved from one place to another, he went to the remote areas of the country, वहां पे जाके he was seeking for he was seeking for the support of the people. He said that without your support it is not possible to get independence, it is not possible to throw these British out of the country. So for almost 1 year he was meeting people, he was convincing them to be part of the freedom struggle. And during this time period only he went to the remote areas, he went to those places also where people did not prefer to go, especially to the areas where the untouchables were living or the Shudras were living, right? Now Gandhi ji, when he approached these people, he realized that these people were not made part of the freedom struggle. इन लोगों को completely जो है अलूफ रखा जाता था, एकदम एकदम अलूफ रखा जाता था इन लोगों से। यहाँ पे इनका कुछ भी पार्टिसिपेशन था ही नहीं जो हमारे ये अनटचेबल्स थे, ठीक है? तो गांधी जी को लगा कि भाई इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अगर फॉलो होगा तो ये तो बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन का मतलब, इस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि जो इंडिपेंडेंस हमें बहुत जल्दी मिलने वाली है वो हमें बहुत समय के बाद मिलेगी, उसका कुछ ऐसा डेफिनेट टाइम पीरियड सेट नहीं है। तो उनको ये लगा कि भाई अगर हम इंडिपेंडेंस जल्दी चाहते हैं तो हमें इन लोगों को भी जो है अपने फ्रीडम स्ट्रगल का जो है पार्ट बनाना पड़ेगा। और पार्ट हम तभी बना पाएंगे जब हम इन लोगों के जब ये लोग हमारे साथ मिलकर लड़ाई करेंगे।
मिलके जो है अंग्रेजों के अगेंस्ट जो है जो भी मतलब मैम आपकी आवाज बीच में बहुत कम हो जा रही है। अब आ रही है। हाँ अब आ रही है। अच्छा चलो ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इस जिस जिस दौरान ये सब चीजें हो रही थी, गांधी जी जब थ्रू आउट द कंट्री व्हेन ही वाज टूरिंग द कंट्री, दैट टाइम ही रियलाइज कि भाई इन जो लोअर कास्ट थे उनको बहुत ज्यादा अलूफ रखा गया था। तो इन्होंने ही वेंट टू देयर प्लेसेस, ही वेंट टू दोज एरियाज वेयर दे वर रिजाइडिंग, उनसे कहा कि हमें आपका सहयोग चाहिए। पर जो आईएनसी की जितने भी मेंबर्स थे दे वर लिटिल रिलेक्टेंट कि भाई हम कैसे इनको अब अपना पार्ट बना लें, क्योंकि जितने लोग हमको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भाई देखो किसी भी काम को करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत रहती है। तो उन्हें लगा कि भाई अगर हम जो अनटचेबल्स हैं उनको भी अगर हम अपने स्ट्रगल का पार्ट बनाते हैं तो मुश्किल ये होगी कि भाई वो लोग जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग हमसे दूर हो जाएंगे, वो अल्टीमेटली हमारा अपना सपोर्ट जो है वो विड्रॉ कर लेंगे हमसे। और अगर वो सपोर्ट विड्रॉ करेंगे तो हमारा नुकसान क्या है कि हमारा नुकसान ये होगा कि भाई हमें जो है फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। जो हाई कास्ट हिंदू ब्राह्मण्स थे या जो हाई सोसाइटी की हाई कास्ट जो थे ब्राह्मण्स थे या हिंदूज थे, उनको उन्हें लगा कि भाई वो अगर दलित वगैरह को शामिल करते हैं इन दी फ्रीडम स्ट्रगल तो वो उनको ऑफेंस करेंगे, उनको जो है नाराज करेंगे। तो बोले कि हम ऐसा काम भी नहीं कर सकते। तो इसलिए गांधी जी को लगा कि नहीं ये चीज गलत है। बट समहाउ वो जो है कुछ वर्कआउट नहीं हो पा रहा था। तो जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिस टाइम पे आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8 में कि गोलमेज सभा के लिए गए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, अरविंद जो थे उन्होंने गांधी जी को इनवाइट करा था टू कम एंड टू सी मतलब टू डिस्कस सर्टेन मैटर्स विद द ब्रिटिश कि भाई इंडिया में स्वराज को मतलब स्वराज डिक्लेयर कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि भाई स्वराज हमें तभी मिल पाएगा जब हम हमें जो है ब्रिटिश कंट्रोल हमें ब्रिटिश हमें कुछ कंट्रोल अपने हाथ में देगा हमारी कंट्री को गवर्न करने के लिए। बट वो सब चीजें फीजेबल नहीं हो पा रही थी, कुछ वर्कआउट नहीं हो पा रहा था इन लोगों के बीच में। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि भाई जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, उनको भी बुलाया गया था। तो गांधी जी वॉज शॉक्ड टू सी जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अरविंद जो पूरे जो जितने भी मेंबर्स थे उनके सामने ये बोला कि ही वांटेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दी दलित्स। तो गांधी जी वॉज शॉक्ड टू हियर दिस, उन्हें लगा कि अरे ये तो मतलब ये तो चीज ऐसी हो गई, मैम योर वॉइस कट रही है। मैम कट नहीं रही, जैसे आप अगर शायद पीछे जा रहे होंगे तो वॉइस भी कम होती जा रही है। नहीं बट मैं तो बहुत पास हूँ, लैपटॉप मेरे बहुत पास है, मैं नहीं जा रही हूँ कहीं पे आगे पीछे। मैम अब सही आ रही है लेकिन बीच बीच में बहुत स्लो हो जाती है। अच्छा चलो पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा मे बी वो नेटवर्क का इशू होता होगा कुछ, है ना। हाँ ये हो सकता है, यू आर राइट। अच्छा तो जब जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी तो गांधी जी वॉज शॉक्ड। उन्हें लगा कि ये तो बहुत गलत चीज हो जाएगी अगर सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये हुआ कि हमारे कंट्री के लोगों का दो पार्ट हो जाना, क्योंकि इन लोगों की भी अच्छी खासी जो है परसेंटेज थी। उन्होंने कहा कि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का जो मोटिव है वो तो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसको परमिशन दे देते हैं। तो गांधी जी ने बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी इनको, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। फाइनली जो है 1932 में शायद पूना पैक्ट साइन हुआ। और उस पूना पैक्ट में गांधी जी ने इस बात के लिए कन्विंस करा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कि जब हम हमारी कंट्री जब आजाद होगी तब हम लोग जो है एक रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रोविजन रखेंगे, जिसमें कि जो जितने भी जो अनटचेबल्स हैं आपके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं उनका एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है। इसीलिए उस बात को ध्यान में रखते हुए व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड ड्यूरिंग दैट टाइम, आपका जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है उन्होंने ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रोविजन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में रखा, जिससे कि इन लोगों को कुछ बेनिफिट्स कुछ प्रिविलेजेस मिले। बिकॉज इतने टाइम से मतलब आप देखो एंशियंट मेडिवल even in the modern period also these people were deprived of all the facilities and resources that were available to the others. So just to bring them to a certain level with the others, इन लोगों को ये रिजर्वेशन का प्रोविजन दिया गया। ठीक है, इज इट ओके क्लास? यस मैम। ठीक है, अब हम आते हैं
अब आप देखो, ये तो हुई लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अब ये स्टेट वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर गिवन ओवर हियर. Now looking at this, what is the number of Lok Sabha constituencies in your state and the neighboring two states? यूपी है हमारा स्टेट, ठीक है. यूपी की कितनी लोकसभा, Yes, ma'am. कितनी कितनी सीट्स हैं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, कितनी सीट्स हैं हमारे यूपी की? 80. 80. वेरी गुड. और यूपी के एडजेसेंट आप ले लो, उत्तराखंड की कितनी है? उत्तराखंड मैम 5. 5. और कौन सा हमारे साथ, हमारे उसके साथ बॉर्डर लगे हुए हैं? मध्य प्रदेश की कितनी है? 29. 29. ठीक है. तो आप अगर आप इस मैप इन स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ध्यान से देखो, तो यू पीपल विल फाइंड दैट यूपी हैज गॉट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, दैट इज 80. कैन यू टेल मी व्हाई? Ma'am, because of population. Yes, because of the population part. Very good. ठीक है, अब आप आ जाओ. चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. Which states have more than 30 Lok Sabha constituencies? Looking at the table that we have, which states have more than 30 Lok Sabha constituencies? Ma'am, West Bengal, Hmm. Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Hmm. Maharashtra, Hmm. and Bihar. And Bihar. Very good. That means how many states? 1, 2, 3, 4. 5. 5. ठीक है. Very good. Why do some states have such a large number of constituencies? Because of the Population. population. भाई अक्षत वगैरह कहाँ चले गए भाई? सब सो गए. दोपहर का टाइम है, मौसम भी इतना जबरदस्त हो रखा है. Ma'am, they are not there in the meeting. हाँ, only 4 are there. I know. Let it be. Kanika, where do you stay, beta? Ma'am, I stay in Sarvodhanagar. Ma'am, it's there in Badaयूं Road. Acha. So is it sunny over there or it is again cloudy only? Ma'am, cloudy. No sun since morning. Chalo. No. Fine. Okay. I hope this much table part is clear to you people. Yes, ma'am. अच्छा, चलिए अब हम आते हैं वोटर्स लिस्ट पे. चलिए, ये वोटर्स लिस्ट आई होप इतनी क्लियर हो गई होगी थोड़ी सी आपको कि वोटर्स लिस्ट इज अ electoral roll. Officially it is called as electoral roll, which has the name of all the eligible voters. Right now, जब भी इलेक्शंस डिक्लेयर होते हैं, इलेक्शन डिक्लेयर होने के साथ ही इस वोटर्स लिस्ट को भी अपडेट किया जाता है. जितने भी जो भी इस इलेक्टोरल रोल में जितने भी लोग एनरोल्ड होते हैं, उनके डाटाज ऑलरेडी सब होते हैं. सिर्फ ये सिर्फ एक उसको रीफर्निश किया जाता है. ये चेक किया जाता है कि भाई जो लोग पिछले साल 70 या 80 साल के थे या 70-75 के थे, क्या वो अभी भी जिंदा हैं या रोल उसका इलेक्टोरल रोल का पार्ट है कि नहीं है. ये चेक करा जाता है और अकॉर्डिंगली जो नए नेम्स ऐड ऑन होते हैं उनको ऐड ऑन किया जाता है, और जो लोग जिनकी डेथ हो जाती है उनको डिलीट कर दिया जाता है. जो ट्रांसफर केसेस होते हैं, जो कंट्री छोड़ के चले जाते हैं या जो उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के कहीं और माइग्रेट कर जाते हैं परमानेंटली, उन सब लोगों के नाम जो है उस वोटर्स लिस्ट में से डिलीट कर दिए जाते हैं. ठीक है. अब ये सबसे बड़ी Yes, ma'am. ये इंपॉर्टेंट लिस्ट इसलिए है बिकॉज भाई सीधी सी बात है, इलेक्शंस का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करना, और रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कौन करेगा? वोटर्स ही करेंगे. अगर हमारे पास वोटर्स की ही लिस्ट प्रॉपर नहीं होगी तो हाउ कैन वी बी श्योर कि सब लोगों ने, जितने भी लोग जो एलिजिबल थे या जो लोग भी हमारे कंट्री का पार्ट है, जो लोग वोट कर सकते थे, उन्होंने वोट करा है. ठीक है. तो ये वोटर्स लिस्ट में नाम होना बहुत जरूरी होता है.
हमारे घर पर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, जस्ट लाइक इलेक्शंस के टाइम से पहले ही इनफैक्ट आते हैं। जब इलेक्शन कमीशन को पता होता है कि भाई अगले साल हमें इलेक्शंस करवाने हैं, तो एक साल पहले वो अपनी वोटर्स लिस्ट को अपडेट करना शुरू कर देते हैं। जो भी अमेंडमेंट्स उसमें होने होते हैं, उन अमेंडमेंट्स के ऊपर वर्क करना वो लोग शुरू कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. हम्म। अब आप नेक्स्ट उसमें आ जाओ। Yes, ma'am. हाँ देखो ये, अच्छा अब इसमें एक चीज और, अब इसमें एक सिस्टम लिखा है लाइक in the last few years a new system of election photo identity card has been introduced. The government has tried to give this card to every person on the voters list. इसकी भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, पता है 1980s में जो भी है मीटिंग में उन्हीं लोगों के लिए है ये स्टोरी। 1980 में टीएन सेशन, जैसे हमारे इस समय इलेक्शन कमीशन कौन है? Ma'am, हमारी इलेक्शन कमीशन, चलो लेट इट बी, अभी तो मीटिंग ओवर हो जाएगी। 1980 में टीएन सेशन वाज द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। उन्होंने एक सजेशन दिया कि भाई क्योंकि पहले के टाइम में ना बेटा इलेक्शंस में बहुत फॉर्जरीज हुआ करती थी। हालांकि गवर्नमेंट इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, बट क्योंकि इतने सारे लूप होल्स थे इस मैकेनिज्म में, इतने सारे लूप होल्स थे कि उनको जो है कैच नहीं किया जा सकता था। तो जो हमारे जो उस समय के जो वो थे टीएन सेशन, उन्होंने कहा, उन्होंने सजेशन दिया कि यदि हम वोटर्स लिस्ट जो बनाते हैं उस पे अगर हम वोटर का फोटो लगा दें तो उससे जो है ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी। तो उस टाइम पे पता है लोगों ने बहुत मजाक बनाया था उनका, मतलब इतना हंसे लोग, अरे बोले फोटोज लगाएंगे हम वोटर्स की, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल। आप बोले कि भाई लाखों करोड़ों की जनता में हम कहाँ से सबका एक एक फोटो चिपकाते रहेंगे उसके अंदर। तो उस समय तो बहुत उनका मजाक बना। लोगों ने कहा अरे बहुत फालतू सा आइडिया है, बेकार सा आइडिया है, और कोई काम नहीं है लगता है इनको, मतलब हर तरीके का क्रिटिसिज्म ही हैड टू बेयर। बट बाद में धीरे धीरे एज टाइम पास्ड पीपल रियलाइज कि ये करना पड़ेगा, क्योंकि बिना फोटो के जो है कोई भी कहीं पे भी वोट दे देता था। नाम ही तो है केवल, अब नाम कौन सा पीपल लाइक, अगर मैं जाके किसी भी XYZ पर्सन के नाम से अगर जाके वोट दे दूं तो दे कैन नॉट आइडेंटिफाई कि भाई मैं वही हूँ कि नहीं हूँ। They can identify only if I have my photograph stick to my voters card. तो ये हुआ कि भाई somehow जो इलेक्शन का जब ये चेंजेस, इलेक्शन कमीशन जब चेंजेस ला रहा था अपने जो है इलेक्शन प्रोसेसेस में, तब उन्होंने कहा कि नहीं हम फोटोज भी इंक्लूड करेंगे। तो आई रिमेम्बर मेरे ख्याल से 2000 में हमारा जब मेरा जब वोटर कार्ड जब रिन्यू हुआ था, तो मैं यहाँ पे 2001 की बात है, उन्होंने फिर मेरा फोटोग्राफ वगैरह सब कुछ मांगा, मेरी फोटो खींची, वो लगा के तब उन्होंने बोला कि हाँ, तो हमने पूछा उनसे कि आपको फोटोज क्यों चाहिए, तो बोले कि नहीं अब से जो है वोटर्स लिस्ट, वोटर्स कार्ड जो है उसके ऊपर फोटो निकल के आएगी, अब कोई भी जो है वोटर्स कार्ड जो है बिना फोटोग्राफ के नहीं होगा। तो आई वाज लाइक चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये तो, अगर ऐसा है ये सिस्टम है तो। आप सोचो 1980s में इस चीज को सोचा गया, ठीक है, और 2000 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो कितना समय लगा हमें एक चीज से निकल के दूसरी चीज में अपने आप को डालने में। अगर आप सोचो उसी समय ये सब चीजें प्रैक्टिकल उसमें हो जाती, प्रैक्टिस में आ जाती, तो शायद बहुत हद तक हम इलेक्शन में जो भी मैल प्रैक्टिसेस होती हैं या जो जो भी मतलब रिगिंग वगैरह प्रैक्टिसेस हैं उनको हम शायद खत्म कर सकते थे, है ना, जो झूठे वोट्स डालते हैं, इन सब प्रैक्टिसेस को हम खत्म कर सकते थे अगर उस टाइम पे ये प्रैक्टिस में आ जाता। किसी भी सिस्टम को लाने में समय तो लगता ही है, बट जब ये सिस्टम आया